At the age of 21, 100 people, 100 soldiers are ready to die for your words. Exactly, At the sir. age of 21, 22, you have your personal machine of 500 crores. That is Sukhoi Mk-30. So, guys, so good evening to everyone. So, it's a great day today, great evening today. Jai Hind. And, so today I am having a talk with Major Chandrasen Kulte. And sir has a very illustrious career in army. And thereafter, he was the head of Zilla Sainik Board. And now he is the director of Armed Forces Preparatory Institute, one of the authority on career in the armed forces. He's the right guy to tell everyone what are the ways and entries you join the armed forces. Sir has been dealing with lot of aspirants, and he's known for that. Lot of people come back to me and say कि अरे चंद्रसेन सर से बात हुई थी, and they have a very high respect for Chandrasen. And today sir, today we will be joined with lot of aspirants, lot of young aspirants जिसको defense join करना है. Lot of parents are there who had messaged me saying that for join करना है. And what happens is आपके मेरे time पे when we were joining the forces हमें guide करने कोई नहीं था. There were nobody to guide us, accidentally Exactly. बोलते हैं कभी हम ऑफिसर बन गए, so everything was luck and so many factors. Exactly. So now with the internet and so many things, now there are people like you who are actually guiding so many people. So yeah, Abhishek, you have joined. Abhishek is also, his daughter want to join, so a lot of them. So good evening everyone. And so today's topic is career in armed forces. So I have Major Chandrasen Kulte, and sir has got, as I said, has got a wonderful career. And we will know more from sir rather than. So sir, the first when I interact, so what was your motivation to join armed forces before we switch to the technical question on how people can join the armed forces? So what was your motivation to join army? So basically, as far as my motivation is concerned, I'm a sports person. And I was good in So the better, not excellent, but good in the academics. And I was a fitness freak basically, just like you. Not up to your level, आपके जैसा नहीं, लेकिन था. I was a university level tennis player. I used to play basketball, volleyball, and now I pursue golf. So basically, that was the one criteria to get into the defense forces कि भाई शाम को खेलने के लिए मिलेगा, सैलरी मिलेगी तो वो टू रिमेन फिट. जैसे बाकी जगहों पे होता है कि पूरा दिन जॉब करो तो जॉब इसलिए करो कि एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट अ सैलरी टू स्पेंड ऑन योर हेल्थ और स्पेंड ऑन द हॉस्पिटल. तो मेरा इंस्पायरेशन ये था कि I will have a disciplined life. Basically, I'm a well-organized fellow, disciplined life with a sportsman spirit in the body. So ये दो चार थे requirements. और जैसे आपने बोला है कि वो तो वक्त ऐसे था कि हर जगह हाथ पैर मारते थे ताकि कहीं कुछ हाथ लग जाए. तो God is kind on us, kind on me particularly कि मिल गया मौका और now मिल गया मौका मारा चौका. Sorry? बोला मिल गया मौका मारा चौका. Exactly. तो वही हुआ. And then it was a fun till date, and hopefully till the last breath I will work for the defense forces. I will inspire the boys. I'll prepare the boys. I don't only inspire them, I prepare them. You know me, what I exactly do. We'll discuss on that. Correct. Yeah. And then to come back to another question, I will ask this question again subsequently when we talk about SSBs. So how was your tenure in army, sir? Like how was your that everybody will love to know that I was the part and parcel of the Kargil war. During Yes. that operation
Operation Vijay Star was given to those who are actively participated. So I was when I joined the force in '96, almost 25 years back. So ऐसे कहा जाता है ना कि फौजी को मौका मिलना चाहिए, कोई कोई तो एक्शन दिखने के लिए, या फिर कोई वॉर हुआ है उसके टाइम में तो उसका कोई सार्थक लगा है उसका काम करना. तो आई वाज इन J&K दैट टाइम इन आई हैड अ फर्स्ट देयर and till I got married on 13th of May 99. And if you remember, that time the Kargil war was going on. तो मेरा हनीमून तो वहीं पे हुआ पाकिस्तान के साथ में. So how was so would you like to share few experiences from the Kargil war, because you were in that sector, and I remember I also were Vijay Star because I was from the Operation Talwar side. So how was your experience being there, sir, in the Kargil war, No, it was like I told you, I was on a leave for getting married. So my leave was cut down. And in fact, I got posted out also from there. वहाँ से पोस्टिंग हो चुका था मेरठ आने के लिए. तो बीवी को तो बोल दिया कि भाई चल सामान बांध ले, जाना है अभी वहाँ पे, मजे करेंगे. टी स्टेशन में चले गए. तो जैसे मैरिज खत्म हुआ, एक 4-5 दिन के बाद में ही मुझे मैसेज मिल गया कि योर लीव हैज बीन कर्टेड and your posting has been deferred. तो तब तक तो पता चल गया था कि something wrong is happening and something great is happening out there. So by that time then I went back. So basically our role was in the Gulmarg sector. Okay. I was posted on the FDL's forward defense locations ahead of the Gulmarg. So वहाँ पे जाने का ना, that time the infrastructure was also not that good. So we created our own bunkers. चीड़ के पेड़ होते हैं, आपने देखा होंगे बड़े वाले जो कश्मीर में मिलते हैं, तो उनके दरख्त काट के खड्डा बनाया अपना खुद का, उसके ऊपर में डाल के बंकर बनाए गए. 24/7 the AK-47 was not cocked and kept even during the sleep, and there was a lot of actions going on. So it was a great experience, lifetime experience, no doubt. Seriously. In fact, I remember we talking it out during our MBA course. I think in 2009, when you shared all this. 2009, I guess. Yeah, 2009. Yeah. So also similar story was of Captain Jairaj, who later martyred in the Kargil. उनका भी ऐसी था, शादी हो गया, he went and honeymoon जा रहे थे, and suddenly he was told to cut his leave and come back. And then, luck would have had, he martyred for the country. So it was, so thereafter, further posting was in Meerut, right? उसके बाद वहाँ से? Then Meerut, I was in Eastern Command in Kolkata also, looking after the portfolio for the Adam officer in my department. Okay. And then lastly, I was in Dharchula. You must have heard right now the Nepalis are acting funny regarding the that particular region, कि भाई हमारा है, and they change the naksha of that corner where the all the three countries' borders come together, China, Nepal, and we. If you see on the extreme right on the Nepal's side. So I was posted there. You must be knowing, आप सबको पता भी होगा कि मानस सरोवर की यात्रा जाती है. Correct. तो वो लास्ट डेस्टिनेशन है या फिर कैंपिंग है अपने इंडिया के अंदर में. तो वहां से वो सारों सब जो पिलग्रिम्स होते हैं उनका तैयारी करके आगे भेजना होता है. एंड आफ्टर दैट आई लेफ्ट द आर्मी. दैट वाज माय लास्ट पोस्टिंग विद कुमाऊं स्काउट्स इन Dharchula. Yeah. So you were with the scouts, no? Ladakh scouts, right? Or Kumaon scouts? Kumaon scouts. I was with Kumaon scouts. Okay. And then I left in 2005 after 10 years of service, active service, and back. Correct. So I remember we speaking about this. So if given a chance life में दोबारा अगर force में मौका मिले कभी जाने का, आज नहीं तो maybe अगला इसमें. So I'm sure like every armed forces guy who have retired or who have moved on, पहला choice तो वही होगा कि फौज. मेरा यूनिफॉर्म अभी भी संभाल के रखा हुआ है. हाँ, आपका तो यूनिफॉर्म, because thereafter sir was the head of Zila Sainik Board, which look after the affairs of veteran officers and soldiers, and he did wonderfully well there, and he was one of those renowned officers. Everyone wanted to go take advice and this thing, and he has done wonderfully well for the armed forces. Sorry?
Yeah, so a lot of questions would be there when we come Yeah, into this. before that, I would like to say a few words regarding my actual tenure when I came back. Okay, और एक इंस्टीट्यूट है सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट औरंगाबाद जो गवर्नमेंट ऑफ correct, महाराष्ट्र चल रहा है तो आई वाज द डायरेक्टर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट फ्रॉम 2010 to 15 5 years I look after that institute and it is as good as RIMC and all this Sainik school which is run by the Ministry of Defense. So during my correct, tenure till date since 2005 till date मिनिमम 200 से ज्यादा ही बच्चे मेरे अंडर में से फौज में गए हैं. अभी तो कोई मेरे ख्याल से मेजर साहब भी बन गया होगा, कर्नल भी बनने वाला होगा. तो आई क्या लुक्ड बात है आफ्टर सर. for 5 years. Every year we used to produce not less than 30-40 officers when I was there. And then I joined Nasik's Bhosla Military School, one of the oldest Okay, military school. So I was the commandant of the Bhosla Military School from 2015 to 18, and right now I'm having my own college in Kolhapur where I prepare the boys for the NDA, particularly 11th and 12th. correct. So guys, sir has ample experience in guiding the youngsters to join the armed forces. तो अभी जो आज के डेट में जो मेजर कर्नल वगैरह होंगे, लॉट ऑफ देम हैव गॉन थ्रू हिज इनके अंडर में बोलते हैं ना, एक द्रोणाचार्य जैसे रहे और बहुत सारे लोग पहुंचे वहां पर. सो ही knows the right thing, and now he has his own college of Armed Forces Preparatory Institute. So sir is not much on Insta, only मेरे request पे आए. So all of you please follow his handle. We will force him to be on Insta because a lot of youngsters are here. So I was only into running pehle, running and running related photo. Last lockdown mein I connected with lot of young people. So when you connect with young people, you also feel young. आपको लगेगा नहीं कि आप 45, 44, 45 के हो करके, So sir, so now coming back to the main topic of today, lot of parents have this. So what is the first way anybody can join the armed forces? Like first is after 12. So we will discuss the entire path. बहुत लोगों को doubt होता है कि कैसे जाना होता है. So all up to you, sir. सिर्फ ऐसा होता है कि जो अर्लीस्ट चांस है फौज में जाने का वो है थ्रू एनडीए, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पुणे. एंड सबको पता होना चाहिए कि वो आप ज्वाइन करने के लिए इट इज लाइक ए टिपिकल, अगर लेमैन्स लैंग्वेज में बताएंगे तो एक कॉलेज है. वो एक कॉलेज है जहां पर ग्रेजुएशन किया जाएगा, लेकिन आपको गारंटी है कि ग्रेजुएशन खत्म होते ही आप ऑफिसर बन गए हो. तो वो कॉलेज में जाने का वो तरीका ये है कि 12th के बाद आप वहां पे जा सकते हैं. 12th का एग्जाम आपने दिया है, आप 5 से 12th आप वहां पे जा सकते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 12th खत्म होने के बाद तैयारी करेंगे, नहीं. क्यों? क्योंकि उसका एज लिमिट होता है, अपर एज लिमिट है 19 साल 6 महीने. यू हैव टू बी बिलो 19.5 व्हेन यू जॉइन द एनडीए. सो इन दैट केस यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. अगर I will assume we will assume one particular case. Suppose student X is there, जो अभी 10th कर चुका है या फिर 11th कर रहा है, अभी उसने 11th का एग्जाम दे दिया मान लीजिए मार्च में, तो वो एलिजिबल. अभी जो आने वाली एग्जाम थी सितंबर में, 6 सितंबर को होने वाली जो एग्जाम है एनडीए की, उसके लिए एलिजिबल है बशर्ते उसने उसका फॉर्म भरा हो. तो ये सोचना गलत कि 12th का एग्जाम हो जाएगा, मेरा बोर्ड का रिजल्ट आएगा तब मैं एनडीए की तैयारी करना शुरू करूंगा. दैट इज रॉन्ग. आपको तैयारी करना चाहिए जैसे आपकी 10th खत्म हो जाती है, आप 11th में चले जाते हो, आपको 15 महीने मिलता है. क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि बाय दैट टाइम आपकी 12th खत्म हो जाती है. मान लो स्टूडेंट एक्स का बोर्ड एग्जाम होगा अप्रैल 21 में एंड ही विल फिनिश हिज 12th इन अप्रैल 21. लेकिन वो लड़का एलिजिबल है 1 जुलाई 21 को एनडीए में ज्वाइन करने के लिए. करेक्ट. इसका मतलब उसको क्या करना चाहिए कि वो उसको गवर्नमेंट ने और यूपीएससी कंडक्ट करती है एग्जाम. दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन न्यू दिल्ली. सो व्हाट दे डू, they assume that this boy will pass 12 in coming April and he is eligible to join on 1st July.
Now they cannot finish all the process in 2 months, that is May and June, Correct, correct. to join the boy on a 1st July 21. So what they do कि अच्छा भाई 12th में है, चल तेरा अभी से एग्जाम की तैयारी करवा लेते, तेरे को पहले ही टेस्ट करवाते. तो वो क्या करेंगे, दे विल हैव कंडक्ट हिज रिटन टेस्ट इन कमिंग सितंबर. Okay, correct. सितंबर में देगा, सितंबर 20 में एग्जाम देगा. ही विल फिनिश हिज एग्जाम in September, result will be out in November, SSB will be conducted in January, February, or some of them will give the SSB in May or April after his board, and they are ready to join on 1st July. In short, आपको अगर एनडीए के थ्रू एंट्री करनी है तो आपको 10th जैसे ही खत्म हो जाता है, 11th एंड 12th में आपको तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए एंड अप्लाई करना चाहिए व्हेन यू आर इन 12th, व्हेन यू आर इन 12th, नॉट फिनिश द 12th. Okay, ये हो गया okay. सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी व्हेन ही विल हाउ ही कैन गेट इनटू दैट फोर्सेस. मतलब 12th के बाद एनडीए उसका सबसे पहला चांस है लाइफ में. ऐसे उसको 24-25 चांस मिलेंगे जिसके बारे में हम आने वाले 15-20 मिनट में बात करेंगे. तो Correct. ये होता है 2 स्टेज में. जैसे यू ऑल्सो नो, पहला स्टेज होता है रिटन टेस्ट, सेकंड टेस्ट होता है एसएसबी. Correct. वी विल कम टू एसएसबी लेटर कि व्हाट इज एसएसबी एंड व्हाट इज रिटन. तो एनडीए के अंदर में भी जो 900 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है, 900 मार्क्स, आउट ऑफ दैट 200 फॉर इंग्लिश, 300 फॉर मैथमेटिक्स, 100 फॉर फिजिक्स, 60 फॉर केमिस्ट्री, 40 फॉर बायोलॉजी. Okay. हिस्ट्री जो 80 मार्क्स एंड करंट अफेयर्स 40 मार्क्स. तो बंदा सिर्फ पीसीएम पढ़ के एनडीए कर लेगा ऐसे नहीं होता. यू नो वेरी वेल, वो हैज टू बी अ Correct. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. Correct, correct. वो जुगाड़ू होना चाहिए, उसको कुछ भी सवाल आ जाए वो बंदे को तरीका पता होना चाहिए कि हाउ टू रीच टू द आंसर, सॉल्यूशन क्या है. Correct. सो इफ यू वांट टू परस्यू यू वांट टू जॉइन फोर्सेस थ्रू एनी वे, 12th के बाद हो, ग्रेजुएशन के बाद में हो, बॉय मस्ट हैव अ बेटर कम्युनिकेशन, बेटर कंट्रोल ओवर इंग्लिश एंड हैव अ extra reading, additional reading, extra reading outside his syllabus book. Correct, correct. So that is Correct. what एनडीए. उसके बाद में अगर एनडीए में आपका मिस हो चुका है, आप ग्रेजुएशन में चले गए हो, ग्रेजुएशन करते वक्त जैसे एनडीए का आप 12th में हो, जब 12th में हो तभी एग्जाम दे सकते हैं. सेम वे जब आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तभी आप एग्जाम दे सकते हैं. यू डोंट हैव टू वेट टू फिनिश योर ग्रेजुएशन, गेट द सर्टिफिकेट विद दैट झब्बा एंड दैट ऑल पैराफिनालिया, और बाद में ढूंढ रहे कि अभी करना क्या है. तो दैट इज रॉन्ग वे. For Correct, any correct. competitive exam, he has to start preparing right from first year, Correct, correct. and he is So eligible to apply for all the exams in final year. Correct. So that means someone who's appearing for, say, CDS, so he has to start his preparation right from his first year of graduation, right? Exactly. He has to set Okay. a long-term plan. Correct, And in correct. that, when during our time, हमारे जमाने में होता क्या था कि एक ही सीडीएस होता था, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, सीडीएससी. Correct. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी ये हो गया है कि एयरफोर्स अपनी एंट्रेंस एग्जाम ले रहा है, सिलेक्शन प्रोसीजर कंटिन्यू कर रहा है, कॉल्ड एज एफकैट, एयरफोर्स Correct, कॉमन एडमिशन correct. टेस्ट. नेवी ने भी अपना अपना दुकान खोल लिया अलग से. नाउ इंडियन नेवी, आईनेट, इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट. Correct. हर कोई अपना अपना एग्जाम दे रहा है. तो अभी बच्चों को तो इतना एडवांटेज है कि भाई अगर बच्चा फाइनल ईयर में है तो एटलीस्ट ही विल हैव 6 to 7 एग्जाम्स इन अ ईयर. True that, true that. 2 सीडीएस के हो गए, दो एनडी, दो एफकैट हो गया, 2 आईनेट हो गया, 6 तो एग्जाम यही हो गया. तो Correct, उसको correct. 2 महीने के बाद, हर 1 महीने के बाद एग्जाम देने के लिए मौका मिल रहा है. तो ये तो True. वो जब फाइनल ईयर एग्जाम ग्रेजुएशन हो चुका है और उसके बाद में लगा हुआ है पढ़ाई करने में, तब तक तो भाई साहब तो एज बार हो जाएंगे. हाँ, age cross हो जाएगा. So yeah, so 24 is the highest age limit correct, correct, for majority of them. For Correct. INET, AFCAT, CDS, 24 is the higher age limit. correct, correct. फिर जब ब्रांच बचता है, कुछ छोटे मोटे ब्रांचेस बचते हैं जिसका 27 तक है, but that is very less chances. So Yeah. point is NDA after 12th means during 12th, CDSC, AFCAT, INET during the graduation right from the first year, so that you cannot develop the personality overnight. Correct, correct, correct. Exactly. Personality Exactly. हमारे हिंदी में, मराठी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कि स्वभाव को बदला नहीं जा सकता.
लेकिन स्वभाव को मरोड़ा जा सकता है। True. तो Exactly. Exactly. स्वभाव को अगर मरोड़ना है तो एक रात में तो मरोड़ नहीं सकते भाई साहब। इट इज Very अ true. लॉन्ग Very प्रोसेस। true. He has to Very true. develop the one. He has to develop that approach, attitude, courage, determinations, all that 15 qualities, which Correct. is basically a imbibe in him. Inculcate True. होने के लिए टाइम लगता है, तो he has to start early. That is my point. Yeah. Exactly. So what you said is that कोई भी candidate होगा तो he has to optimize his chances. You know, अगर आप first year से ही prepare कर रहे हो, so you have to maximize जितना भी आप maximum ले सकते हो. You know, with your age bracket जो भी 24 का age bracket है, you have to finish that. So coming back to 12th standard. So NDA में जाने के लिए science is the requirement, right? So a lot of people ask this question कि अगर मैं 12th कॉमर्स या 12th आर्ट्स में हूँ तो मैं कोई तरीका है क्या मुझे आर्मी या आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का? Let me tell you, Bijay, it is a myth that you have to have a science from 12th. You have to do a Okay. 12th science for NDA. It is a myth. ये गलत बात है। कॉमर्स वाला भी जा सकता है, आर्ट वाला भी जा सकता है जो 12th उसमें से कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहां पे आती है मैं बताता हूं आपको। You can apply. Boy has done 12th from art, 12th from commerce, he can apply. But point is, there is 200 marks for science in out of 900 mark paper. Correct. 100 for maths. So out of 900 marks, 500 science वालों को है. Okay. Point clear? 300 Correct. मैथमेटिक्स के, 200 साइंस के, 900 देयर एनडीए 900 मार्क का, 900 मार्क्स का रिटर्न आई एम टॉकिंग अबाउट। एसएसबी अलग 900, लेकिन Correct. ये 900 मार्क्स का है, तो इसके अंदर में तो 300 इज मैथमेटिक्स, 200 इज साइंस। सो नाउ ही इज ऑन अ रॉन्ग फुट इफ ही इज फ्रॉम कॉमर्स एंड आर्ट। लेकिन होता है, एक आधा जिद्दी बच्चा होता है, बड़ा जोशीला होता है, वो इवन बीकॉम वाला, बीए वाले सीडीएस कर जाते हैं। करेक्ट। लेकिन चाहिए कि उसको फिर वो टॉपिक जो कवर किए गए सिलेबस का हिस्सा है, मैथमेटिक्स से हो या फिर साइंस से हो, उसको पढ़ना पड़ेगा। दे डोंट आस्क यू विच ग्रेजुएशन यू हैव डन। नाउअडेज ओनली AFCAT and INET, they ask whether you are engineer or not. CDSE, any graduation can give, any graduate can give. So again coming back to that, so जो बंदा 12th कॉमर्स या 12th आर्ट्स है, 12th में स्पेशली फॉर एनडीए, so even with 12th commerce you can apply for NDA entrance के लिए? You can apply. ये बीकॉम अप्लाई कर सकते हो। तैयारी होगी नहीं होगी ये तो बच्चे पे डिपेंड है, क्योंकि उसको एडिशनल मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट। जो कि बीए का अगर हिस्सा नहीं है मैथमेटिक्स, सॉरी 12th आर्ट्स में से जब कर रहा है, तो उसका अगर मैथ्स नहीं है तो he has to prepare it. Correct. Outside his 12th. Okay. So yeah, so that is one learning, because there is a myth कि only 12th science, even I was having that feeling कि since I'm not into training and trainer, so मुझे भी ऐसे था कि सिर्फ 12th science वाले जो बंदे होते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। So that is one good information. तैयारी होगी नहीं होगी वो तो बच्चे पे डिपेंड है। So guys, this is coming straight from someone who's dealing that day in and day out. So lot of the doubts would be cleared. And yes, बहुत सारे लोग आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देंगे उसका आंसर। So one girl is asking, out of this topic, she's got 6 fingers, I guess. So she says कि am I medically allowed? So I will, this is out of the syllabus question, but ठीक है sir, she is insisting. So no, why not? Their queries are queries. We are here to correct. Any orthopedic disorder or disability is not permitted. Yes, but she can, if she is in position to operate it outside and get rid of that, she can after that. Okay, so I think Ankita, I think I've answered your question because you were typing so many times. So sir, coming back again, so we go in a step. Abhi 12 के बाद NDA is one thing. Second thing is कि you have various other options like Indian Naval Academy हो गया, and I think TES is there, Technical Entry Service.
So what are the other options? 3-4 12 के Okay. बाद 12. ओके, 12th हो चुका है, आप एनडीए से आगे चले गए हैं, नाउ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनडीए एनीमोर। तो जब आप 12th में होते हैं तभी आपको आपको एक आपने जैसे बोला कि टीएस टेक्निकल एंट्री स्कीम, तो सबके नॉलेज के लिए बता दें कि आर्मी अपनी खुद के 3 कॉलेजेस चलाती है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस। आजकल इंजीनियरिंग या फिर कुछ नहीं है तो चलो इंजीनियरिंग। आपका टाइम अलग था, अभी तो धड़ल्ले से कॉलेजेस है, मतलब उसका यू कैन, मतलब एवरी नूक एंड कॉर्नर देयर इज इंजीनियरिंग कॉलेज नाउअडेज। लेकिन इंडियन आर्मी अपने 3 कॉलेजेस चलाती है। एक है सीएमई पुणे, दूसरा है Okay. सिकंदराबाद और तीसरा है महू। 3 इंजीनियरिंग Okay. कॉलेज चलते हैं। तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज अपने अपने स्ट्रीम्स के लिए जाने जाते हैं। पुणे ऑल इन वन है, ईएनटीसी के लिए सिकंदराबाद है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एंड बाकी स्ट्रीम्स के लिए महू है। अब ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें एडमिशन होता कैसे है? इसमें सिंपल तरीका है, अगर आप इसमें सिर्फ साइंस ही जा सकता है, दैट इज ऑब्वियस। अनलाइक एनडीए ओनली साइंस बॉयज कैन ज्वाइन इंजीनियरिंग। सो ये 3 इंडियन आर्मी ने चलाए हुए, एमओडी ने चलाए हुए कॉलेज के अंदर में आपका पीसीएम का परसेंटेज देखते हैं पहले तो। अगर Okay. आप पीसीएम 70% से ऊपर मार्क है आपके, 70-75% के आसपास है, प्रिसाइसली 75 पकड़ के चलिए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, सो 75 के नीचे मेरिट जाता नहीं है। अगर आपका 75% मार्क है पीसीएम में, और आपने Okay. जेई का एग्जाम आपका और रिजल्ट आपका प्लस में है, पॉजिटिव में है, अच्छा है आपका, उसका नॉट आईआईटी लेवल का बट एवरेज है आपका, हाँ. तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी नोटिफिकेशन आती है, मैं वो भी बताऊंगा कि कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है। वो नोटिफिकेशन जो आएगा तो उसमें आप अप्लाई करना है, आपका रिटर्न नहीं होगा, आपका सीधा Okay. सीधा इंटरव्यू होगा बेस्ड ऑन टू योर दिस क्राइटेरियाज दैट यू हैव अ 75 इन पीसीएम एंड यू आर बेटर ऑफ इन जेई। आपका आपका एसएसबी होगा और आपको इन कॉलेजेस में दाखिला दिया जाएगा। दैट इज व्हाट Oh. द टीएस टेक्निकल एंट्री स्कीम। अभी वहां पे इंजीनियरिंग का दाखिला जैसे ही हो जाता है, आप श्योर शॉट, इट इज लाइक अ प्री कमीशन ट्रेनिंग। Okay. Okay. आप जैसे ग्रेजुएशन खत्म, यू विल बी ऑब्जर्व्ड इन इंडियन आर्मी इन आइदर ईएमई, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, दैट इज कॉल्ड ईएमई Okay. कोर। सेकंड, इन द इंजीनियर्स, those who are civil engineers, that is sappers Okay. basically, and third is signals। तो यहाँ पे Okay. डायरेक्ट ऑफिसर, इनका फाइनल ईयर में जाते हैं भाई साहब, इनका तनख्वाह शुरू, बेसिक्स मिलना शुरू हो जाता है, बेसिक। आज के Oh. तारीख में लेफ्टिनेंट साहब का बेसिक 56,000 है। हाँ. तो जैसे कि आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पहुंच गए, आपका पॉकेट मनी 56,000 पर मंथ स्टार्ट हो चुका है। My goodness. और यहाँ पे तो लगे हुए ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद में भी। Correct. 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 तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? एनडीए का भी वही हाल है। एनडीए में 3 साल बच्चा चला गया, एनडीए में 17 साल में, 18, 19, Correct. 20 साल में खत्म एनडीए ग्रेजुएशन 3 साल का या फिर ट्रेनिंग उसकी। व्हाई आई एम यूजिंग अ लोकल और अ लेमैन्स लिंगो टू अंडरस्टैंड द बॉयज। Yes. Yes. मतलब Yes. Definitely. वो कॉलेज में खत्म, जैसे वो आईएमए में जाएगा चौथे साल में, 4th ईयर Correct. में, Correct. 20 चल रहा होगा, दैट Correct. बच्चा विल स्टार्ट गेटिंग 56,000 रुपीज अ मंथ। Correct. Correct. और यहाँ पे तो 21 साल के बच्चे को पूछेंगे क्या 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 सोचा है आपने? नहीं, पापा ने कुछ बताया नहीं अभी तक। 21 करना साल क्या के है? बच्चे अभी तो बहुत सारे बच्चे तो टिकटॉक बना रहे थे इसके पहले, so see, that is what is the career in the armed forces. So all of you guys who are listening, how important it is to get in the armed forces. See, आपका पूरा career change हो जाएगा आपका. As sir says कि 17 by the age of 21 max you are earning 50 whatever 56,000 as pocket money, you know. So Forget about that that is money. At the age of 21, I'm getting goosebump. Every time when I say this, I get the goosebump. At the age of 21, hundreds jawans are ready to die for your words. seriously, sir, seriously, and Where it happened? seriously. अफगान होगा 21 साल का,
जब कैप्टन विक्रम बात्रा ने बताया कि चलो we have to go and get our piece of land back, everybody was ready. correct, Nobody correct. asked question. He said कि भाई जाते वक्त तो 10 होंगे, आते वक्त एक भी होगा कि नहीं पता. Are you ready? They said yes sir. That is the Josh. At the age of 21, 100 people, 100 soldiers are ready to die for your words. Exactly, At sir. the age of 21, 22, you have your personal machine of 500 crores. That is Sukhoi Mk-30. Seriously, seriously. यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग 7 CGPA में कंप्लीट किया. पापा इज वेरी हैप्पी, डैम हैप्पी. ये ज्यादा देगा क्या? पल्सर. लेकिन यहाँ पे तो आपका ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा एंड यू आर अ फाइटर पायलट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन He's एयरफोर्स विल giving गिव 500 crores machine to you. seriously, 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 इससे absolutely. You know, कहाँ कहाँ पल्सर और कहाँ 500 crore वाला, you know, that is what is the, you know, so we have lived that life at the age of 21, 22. I still remember all of you. I mean, you and me both have lived that life at 22. जहाँ पैसा तो ठीक है, but वो एक order पे there were hundreds of people who were ready to die for you, you know, and that is what Kargil war, if you see, I mean, if both of us were part of that, we know that जो भी you know gallantry award winners and जो शहीद हुए, all of them were youngsters. मतलब 22 साल 23 साल maximum. Even the Paramveer Chakra. 20 years old. Yeah, seriously. And even, you know, Paramveer Chakra, Yogendra Yadav, though he was a soldier, but 19 years में he got Paramveer Chakra. 19 years, you know, 19 years. या मुंह में उंगली डाल के घूमते हैं यहाँ जब ये करते हैं तो 19 years में you got Paramveer Chakra. So that is what is a career. So guys, that is what is a career, you know, and this is not a career, this is life, you know, this is a lifestyle. So all of you please aspire to be there. So sir, one thing is that so now we still stick to 12th only. So this technical entry services TES for army, is it only for male candidates as of now? As of now, it is only for male candidates, TS. But Okay. very soon, they are planning to open the NDA for the girls. Oh wow. It is in pipeline. In a couple of years, it might be in place. Girls, those who are in engineering in first year, second year, or those who are in the 10th or 11th or 12th, they should keep eye on it, whether TS is open for the girls or not. Okay. Yeah, so all young friends of mine, all young girls who are listening this, that's a great news which sir has given. Watch out, because soon the academies may open for young girls also, you know, after 12th standard. So please, it's a matter of couple of years, and I'm sure we all need equal forces. जैसे अभी permanent commission we have started giving, so please look out for this. And one more question which is coming, only Navy Air Force students science are needed for NDA, ऐसे कुछ है क्या sir? Someone is asking. NDA के लिए तो कुछ भी चल जाएगा ना? NDA, because they are going for the graduation. Now, as on today, जो नेवल अकेडमी है इजीमाला केरला के अंदर की, वो तो पूरा 4 साल एक ही जगह करना चाहती है. क्यों नेवल एकेडमी स्टार्ट की गई? क्योंकि 4 साल कैडेट जो एक ही जगह रहे और उसको इंजीनियरिंग का डिग्री दिया जाता है. करेक्ट. तो जब 12th के बाद आपने प्रूव कर दिया कि यू आर गुड इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड यू जॉइंड, आफ्टर दैट इफ यू आर गेटिंग इनटू द नेवी, दे विल मेक यू इंजीनियर ना. करेक्ट. एंड देन इन NDA they give you science graduation, right? BSc देते हैं ना NDA में तो. They give BA, BCom, BSc, nowadays BCA also. हाँ, inside NDA, हाँ. Depend upon कितना पढ़ते हो आप वहाँ पे जाने के बाद. Okay. Yeah. So guys, a lot of you are asking questions. Few questions we have already answered, and now we are 12. अभी हम 12 के बाद की entry की बातें करें. We spoke about entries for girls, which may happen soon after 12th standard. And there's a lot of talk which is going on. So sir, one more question a lot of people ask is ki,
जो ओपन स्कूल्स होते हैं, आईनॉस जो ओपन स्कूल्स होते हैं, सो दे आर ऑल्सो एलिजिबल, राइट? जिसके पास 10th का सर्टिफिकेट या 12th का सर्टिफिकेट जो ओपन स्कूल से करते हैं, सो दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एनडीए ना, दे कैन गिव एनडीए, राइट? They can even, suppose you are from a IGNOU, करेक्ट that करेक्ट, Indira Gandhi यूनिवर्सिटी National इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, New Delhi. So if you have done a graduation from IGNOU, you are eligible for the CDSE. ओके 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 ओके, They don't ask whether you are a means full time or a what you can say पार्ट टाइम corresponding graduation और you have. डिस्टेंस एजुकेशन, Distance, या and they are not interested. You prove your metal in exam, that is good enough for them. exactly. So now Yeah. 12th के बाद one more thing is the medical entry, AFMC, the Armed Forces Medical College. Yeah. So if you can throw some light on that. See, there is only one military medical college in all over India. That is Armed Forces Medical College, Pune. So how they select? Again, they don't go for the written. They are happy to use the data of a NEET, which is Okay. basically medical graduation in medical admission, medical colleges admissions. So again, they will go for the NEET marks, your board marks, and they will have the interview, and then they will give the admission into the AFMC. Same story of the AFMC also. अगर आप वहाँ पे जैसे आपका एडमिशन हो जाता है, आप 4 साल वहाँ पे 5 साल ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आप एब्जॉर्ब किए जाते हो डायरेक्टली एज अ डॉक्टर. Okay. तो जैसे Okay. आप में चले जाते हैं, आपको स्टाइपेंड स्टार्ट हो जाता है. Correct. Correct. Those who are aspiring to join the AFMC and then join the defense forces, they must give a NEET properly and be ready with for the interview purpose. Okay. Okay. And then once they graduate from AFMC, they can opt for Army, Navy, Air Force, anything? No, these are forces medical college. So basically, they are for tri-services. Okay. So they name itself indicates Armed Forces Medical College, AFMC. Correct. Correct. So they are eligible, means they ask for the choice, and if you are a topper in that, then they will absorb you accordingly. Even after joining the services, you can be shifted from Army to Navy, Navy to Air Force. Depend upon you are requesting. There are cases like one of my doctor. He initially was in Army, then now he is in the Air Force as a doctor. Correct. Correct. In fact, I have seen a case where an officer was in all the forces, all 3 forces he had served. So probably one of those lucky guys who, who did that. So good. So this was, so AFMC girls can also join after 12? Yes. Sorry to add that point. Girls can join AFMC and they can be a doctor in the forces. Girls, Okay. AFMC for the girls. Oh, great. So great news for everyone. All those who are aspiring to become doctors. So please go and do AFMC का जो entry exam है. So now we come to 12th standard तो हो गया. Now we come to the graduation part. So first option is जब आप 12th miss कर जाते हैं, उसके बाद graduation में आते हैं. So graduation के बाद what are the entries? CDSE हो गया और naval जो SSC short service tech जो भी entry. एक तो CDSE is common entrance for all combined defense Correct. services exam, CDSE, which caters for all the 3 forces. जैसे बताया मैंने कि AFCAT काफी फेमस हो. अवनी चतुर्वेदी का नाम तो सुना होगा बच्चों ने आजकल. करेक्ट उन्हीं का नाम. तो she was AFCAT entry. So एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट भी दे सकते हैं, वो भी साल में 2 बार होती है. CDSE भी साल में 2 बार होती है. INET जिसे कहते हैं INET, INET दैट इज इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट, वो भी साल में 2 बार होती है. तो ये तो 6 एग्जाम तो ही है. और उनका शेड्यूल भी ऐसा होता है कि वो एक दूसरे में क्लैश नहीं करते हैं. डिलीवरी थोड़ा सा गैप के बाद रखते हैं, मतलब 1 महीने का 2 महीने का गैप. मतलब पॉइंट ये है कि हर 1 महीने में 2 महीने में आपकी कोई ना कोई एग्जाम हो रही है. तो कितने स्कोप है. मैं तो बच्चों को बताते रहता हूँ जब भी मैं किसी के कॉन्टेक्ट में आता हूँ या फिर सेमिनार होते हैं. अभी तो नाउ गोइंग फॉर अ वेबिनार आल्सो थैंक्स टू कोरोना. सो इसके अंदर में मैं ये बताते रहता हूँ कि अगर 24 इयर्स का एज लिमिट है ये तीनों 4 एग्जाम के लिए और आपका ग्रेजुएशन हो चुका है 21 या फिर यू आर इन फाइनल ईयर इन 21 इयर्स ऑफ एज, फिर भी आपके पास 22, 23, 24 ये 3 साल होते हैं. तो 6 एग्जाम तो यही हो.
3 साल में 6 एग्जाम, मतलब 18 बार आप यही एग्जाम दे रहे हो। करेक्ट पर 18 अटेम्प्ट देने के बावजूद अगर आप इंजीनियर है तो वो तो बात अलग है। करेक्ट इंजीनियर तो अलग स्टोरी है। इफ यू आर इंजीनियर ग्रेजुएट, चांसेस बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। और लेकिन आने वाले ट्रू दिनों में AFCAT एंड INET दे आर मेकिंग कंपलसरी एंड ऑलरेडी कर चुके हैं कि ओनली फॉर इंजीनियर्स। लेकिन ओके अगर आप परस्यू कर रहे हैं, सीडीएस भी परस्यू कर रहे हैं, तो सीडीएस भी आप 6 बार दे सकते हो, 6 से 7 बार दे सकते हो। तो आप करेक्ट अगर करेक्ट हैं तो ये तीनों तो ही है। उसके अलावा इंजीनियर्स के लिए हमको हमको लगता है कि फौज माने सिर्फ बैरल, अपना गन लिया, एक आंख बंद दूसरी आंख बैरल के अंदर में पट्टे पट्टे लगा दिए और चल रहे हैं। नहीं, बहुत सारे अगर लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, किसी का सवाल है कि सर लॉ ग्रेजुएट्स, लॉग हाँ जा सकते नहीं जा सकते, लॉ ग्रेजुएट जा सकते हैं, इवन होटल मैनेजमेंट का भी कभी कभी वैकेंसी निकल जाता है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट के अलावा एग्रीकल्चरिस्ट जा सकते हैं, वेटनरियंस जा सकते हैं, इंजीनियर्स तो जा ही सकते हैं, डॉक्टर जा सकते हैं, डेंटिस्ट जा सकते हैं। अगर आप ओके डेंटल ग्रेजुएशन, अगर आपका डेंटल BDS है आप, तो BDS भी फौज में जा सकते हैं। सो देयर आर ओके सो मेनी, ओके देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। इंजीनियर्स का तो मैंने जैसे बताया आपको, इंजीनियरिंग का अलग से एंट्रेंस होता है, एग्जाम होता है इससे ओनली फॉर इंजीनियर्स। आप फाइनल ईयर ओके में हैं, अगर आपका 6 CGPA मतलब 60% मार्क है आपको, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप अप्लाई करिए, आपको तो रिटर्न भी नहीं देना है, सीधे SSB करनी है। क्योंकि करेक्ट लेखित करेक्ट करेक्ट एग्जाम नहीं देना है तो आधी जनता तो वैसे ही खुश हो जाती है। तो सीरियसली लेकिन उनको जब पता चलेगा कि SSB मतलब माने क्या, तो फिर उनको पता चलेगा कि वो तो पहले से तैयारी करना चाहिए उसको। हाँ तो तैयारी तैयारी पहले से करना। सो ऑल दिस एंट्रीज लाइक अभी अभी जैसे ग्रेजुएशन है, बीबीए का है, यू नो बीबीए बीएमएस, ऑल दोस गाइज कैन आल्सो अप्लाई ना, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर सीडीएसई राइट? एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर CDSE। और एनसीसी का ऐसा है, somebody हाँ is giving एनसीसी NCC entry that NCC, हम बोलते हैं कि सर NCC करना है मुझे क्योंकि फौज में जाना है। ठीक है, अच्छा है, NCC करना चाहिए, उससे आपको थोड़ा डिसिप्लिन आएगा, आपको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स का, आप कांटेक्ट में रहेंगे। लेकिन आजकल ऐसे हो चुका है कि NCC का जो वैकेंसीज निकलता है वो, मतलब अगर इधर CDSC का 250 है, एनडीए का ओके तो साल है, एनडीए और एनए का करेक्ट मिलाएंगे तो हर साल हर 6 महीने में होता है। बाकी जैसे नहीं, मतलब हर 6 महीने में एक बैच होती है। करेक्ट करेक्ट तो एनडीए के कंपैरिजन करेंगे हम, तो एनडीए में 1000 एडमिशंस होते हैं साल में, 500 प्लस 500, 1 जनवरी 1 जून। करेक्ट CDSC का कम से कम 700 हो जाते हैं, 700, 350। करेक्ट अगर 1700 ऐसे देखते, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन का देखते जाएंगे 300-400। तो एनसीसी का जो वैकेंसी या फिर फिलअप किया जाता है वो एक 20 से 25 होते हैं साल में, ओके प्रोपोर्शनली ओके देखेंगे तो इतना उसका प्रोपोर्शनेटली काफी कम मतलब ओपनिंग्स होती है। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपका उसमें से जाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन आप कॉम्पीट बहुत तगड़ा करोगे एनसीसी के कैडेट्स के साथ में। ठीक है, ओके क्या सो अगर सपोज अगर मैं सीडीएसई, इफ आई एम गोइंग थ्रू सीडीएसई और मेरे पास एनसीसी का यू नो लेवल सर्टिफिकेट है, डज दैट हेल्प मी इन एनी सेंस? लॉट ऑफ पीपल Yes, हैव दिस थिंग कि अगर ओके तो होता क्या है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट विद A ग्रेड, दैट इज सीनियर एनसीसी, जिसको हम कॉलेज वाली बोलते हैं। 2 एनसीसी होते हैं, एक तो जूनियर एनसीसी, सीनियर एनसीसी। जूनियर एनसीसी 10th के पहले हो जाती है, सीनियर एनसीसी ये 11th 12th और ग्रेजुएशन करते हुए चलती है। तो उसको बोलते हैं, जो जूनियर एनसीसी होता है उसका B सर्टिफिकेट होता है, सीनियर एनसीसी का C सर्टिफिकेट होता है, C। तो करेक्ट उसमें करेक्ट C सर्टिफिकेट में अगर आपका A ग्रेड है, ग्रेड होते हाँ हैं ABCD होते हैं, C करेक्ट सर्टिफिकेट विद A, तो वो बंदा एनसीसी स्पेशल एंट्री में अप्लाई कर सकता है। लेकिन ओके जैसे बताया बहुत कम होती है। लेकिन आप मान लो फॉर आप CDSC पास हो चुके हैं और हाँ आप SSB जा रहे हो, और वहां पे आपने दिखाया कि आई एम एनसीसी कैंडिडेट ऑल्सो, आई एम एनसीसी कैडेट ऑल्सो, आई हैव दिस सर्टिफिकेट ऑल्सो, और मेरे पास में ओके नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट थ्रू CDSC, मेरे पास में नहीं है और आपके पास में है, तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि ही विल आस्क मी कि हाउ यू डेवलप द इंटरेस्ट। मैंने सर फ्रॉम चाइल्डहुड आई एम हैविंग इंटरेस्ट, देन व्हाई डोंट यू हैव एनसीसी, व्हाई यू हैव नॉट जॉइंड एनसीसी? करेक्ट करेक्ट करेक्ट
sir, my school was not having NCC. Correct. जो बंदे पर आप है, आप इंटरव्यू में बैठे हैं एसएसबी के इंटरव्यू में, पर आपको पूछा जाता है कि हाउ यू डेवलप द इंटरेस्ट. सर, आई सॉ माय एनसीसी इन माय स्कूल. आई व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड आई जॉइंड एनसीसी एंड देन आई जॉइंड द सीनियर एनसीसी आल्सो. हाँ भाई, बंदे में बचपन से इंटरेस्ट है, तो वो एडवांटेज उसको मिलेगा. वो बात तो है ही है. ओके. या So someone is also asking NCC special entry जिसके पास NCC C सर्टिफिकेट हो तो क्या सभी को SSB के लिए बुलाया जाता है? अप्लाई करोगे तो बुलाया जाएगा ना, डेफिनेटली. अपना उसमें भी, लेकिन वैकेंसी पे डिपेंड करता है. एनसीसी आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपके अच्छे मार्क्स हैं मान लीजिए, ठीक है, आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट विद ए ग्रेड है तभी बुलाया जाएगा. सी सर्टिफिकेट में बी ग्रेड भी होता है, सी सर्टिफिकेट में सी ग्रेड भी होता है, तो कहीं ना कहीं तो फिल्टर लगाना पड़ेगा. सो व्हाट फिल्टर इज कि सी सर्टिफिकेट विद ए ग्रेड, तो आप अप्लाई करोगे तो 99% स्कोप है आपके पास. अगर सी सर्टिफिकेट विद ए ग्रेड है तो आपको कॉल लेटर जरूर आएगा एसएसबी का. या So lot of people. So okay guys, commando entry. Someone is asking. There is commando entry 12th या graduation के बाद नहीं होता है. आपको फौज में जाके थोड़ा घसना पड़ता है. उसके बाद तभी वो देखेंगे कि आप कमांडो एक्चुअली बन सकते हो क्या. कमांडो बनना इज नॉट दैट इजी. स्पेशल फोर्सेस, मार्कोस, गरुड़, यू रिक्वायर सर्टन कैलिबर. यूनिफॉर्म जो मरून बेरे या जो पहनते हैं यूनिफॉर्म, दैट इज प्रेटी ग्लैमरस एंड वो अर्न किया जाता है. हम सबको चाहत होती है कि सबको चाहत होता है कि कमांडो बने. So, but commando is only when you join the forces and then you go. You know, there is no direct 12 के बाद आपको या CDS के बाद commando करके बुला लेंगे. Nothing like that. Okay. So, sir, so now coming back, ये सारे notifications कहाँ मिलते हैं? हाँ, that is very important question. So guys, please listen to this because this is very very important. सारे notifications कहाँ मिलते हैं? Yeah, sorry. आज की तारीख में यह है ना कि information is power. But there is a additional and unwarranted information is also running around in the social medias and all over the places. So authentic sources क्या है? Authentic sources ये है, सबसे बड़ा authentic source है सारे ही entrance exam का, वो है employment news. Okay. Government of India, Ministry of Information and Technology, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है, वो एक हर हफ्ते में और हर एक हफ्ते में सैटरडे को एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज रिलीज करता है. हर हफ्ते में फोर्टनाइटली, सॉरी करेक्शन, फोर्टनाइटली एम्प्लॉयमेंट न्यूज प्रिंट करता है और ऑल ओवर इंडिया सर्कुलेट करता है. वो कहाँ मिलता है? आपका जो न्यूज़पेपर का जो डिलीवरी है या फिर जो न्यूज़पेपर एजेंसी आपके घर में न्यूज़पेपर डालती है, उस बंदे को बोलो कि भैया मेरे को एम्प्लॉयमेंट न्यूज चाहिए. करेक्ट. बोलता है वो क्या होता है, उसको पता होगा, वो लाके दे देगा. दूसरा तरीका एम्प्लॉयमेंट न्यूज घर पे आने का ये है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, employmentnews.org या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज इन इंडिया ये सर्च मारिए तो आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज मिल जाएगा. ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट का, चेक कर लीजिए. उसकी वेबसाइट भी है employmentnews.org. तो आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं. वेरी नॉमिनल फीस, 15 रुपए का एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता है, महीने में 2 आते हैं तो 30 रुपए हो गया. 12 या 36 मतलब 360 रुपए में आपके घर बैठे बैठे आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, चाहे वो सिपाही से लेके IAS IPS तक या फिर डिफेंस फोर्सेस, NDA, CDS, AFCAT, INET, टेक्निकल एंट्री, TES, it is mandatory to give the advertisement in employment news to these agencies. Oh, okay. That's a great news. 10 जगह पे वो एडवर्टाइजमेंट करें, अपनी वेबसाइट चलाएं, अपना खुद का जो भी है मतलब सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करें, लेकिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में वो ऐड देनी पड़ेगी. इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक ऐड आपके नजर के नीचे से जाएगी. यू विल गो थ्रू दैट एडवर्टाइजमेंट विदाउट फेल. Okay, so that's a very great information. Sorry sir. No, that's a very great information. मतलब बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है.
सो employmentnews.org पे जाइए या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज सब्सक्राइब करिए, आप खुद ही ऑनलाइन पेमेंट करके आपके घर पे वो बाय पोस्ट आ जाएगा। ओके आप ओके पढ़िए और आप उसमें से फॉलो करिए उसको। पहला सोर्स, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा है रिगार्डिंग आर्मी नेवी। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज का ये खासियत है कि नॉट ओनली डिफेंस फोर्सेस, ऑल अदर नोटिफिकेशंस, इंडियन रेलवे, एयर इंडिया, कोल इंडिया, और इंडियन ऑयल, ऑल भारत पेट्रोलियम, all DRDOs, everybody has to give an advertisement in the employment news. It's like a ओके newspaper for employment of a government of India. Pahila point. Only for defense forces, you attach join in front of all the three forces. What does it mean? Join Indian Navy. ओके Sir, ओके join Indian Navy. You will get the official website of a Indian Navy. Type join Indian Air Force. You will get the official website of Indian Air Force. Type join Indian Army. You will get the official website of a Indian Army. वहां पे जाइए, वहां पे अपना अकाउंट खोलिए, आपको अलर्ट्स आते रहेंगे। ओके ग्रेट 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 Register there on this website, you will get the alerts. Boys nowadays are very happy to be on Instagram and this and that. They can very well do this. एम्प्लॉयमेंट न्यूज खरीदो, Yes. पेपर पढ़ने का अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, हमारा वो जो छोटा सा स्क्रीन इज लाइफ फॉर अस, गो फॉर इट। आजकल Seriously. कल ही मेरे इंस्टीट्यूट का, जस्ट फॉर अ जोक, सीरियस टॉक बहुत हो गया, तो इंटरव्यू चल रहा था, ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर द 11th, टू सेलेक्ट फॉर द 11th स्टैंडर्ड इन माय कॉलेज। मैं ऐसे बच्चों को पूछता था, कम से कम 8 से 10 लड़कों ने, जिन्होंने 10th किया है, उन्होंने आंसर क्या दिया इस सवाल का जो मैंने पूछा है। मेरा सवाल था, विच गेम डू यू प्ले? ही सेड सर पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, दिस दैट। I said, damn it, I'm not interested in all these games. I said, which sport, which game on ground? Volleyball, basketball, football, what do you play? ये तो हल है। तो ये दैट इज डिफरेंट स्टोरी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, ज्वाइन इंडियन नेवी, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, ज्वाइन इंडियन आर्मी, दिस 3 वेबसाइट। एंड फोर्थ वेबसाइट इज, फिफ्थ वेबसाइट एम्प्लॉयमेंट न्यूज का एक हो गया वेबसाइट, ज्वाइन इंडियन नेवी, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, ज्वाइन इंडियन नेवी। एंड फिफ्थ इज upsc.org.in, Okay. Union Public Commission.org.in. Okay. So Okay. that is the place where UPSC is supposed to upload their all advertisements. Okay. और Okay. ऑफिसर बनने की सोच रहे हो, एम्प्लॉयमेंट न्यूज तो भी बाकी कर्मचारियों का एडवर्टाइजमेंट आएगा उसके अंदर में, लेकिन यूपीएससी इज नॉट डूइंग दैट। दे आर नॉट डूइंग द भर्ती फॉर द शिपाही एंड सफाई वालास एंड ऑल दैट। दैट इज ओनली फॉर द ऑफिसर्स एंड द हायर अप्स इन द हियरार्की। सो upsc.org.in, ये तो आप लिख के रखिए और इसको रोज खोलिए, इसको होम पेज बनाइए जो जॉब ढूंढ रहे हैं। Seriously. Seriously. आपका होता है ना कुछ, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस, लेकिन वो होते हैं ना फेवरेट्स एंड ऑल दैट Yes. 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 on web Favorites में जो pages or websites or where you search, you put these 5 favorites, then see कि आप तो थक जाओगे एग्जाम दे दे के, आप थक जाओगे कि अच्छा इतना भी नौकरी निकलता है, हमको पता ही नहीं होता। Seriously. पता ही नहीं होता, नौकरी मेन तो पता ही नहीं होता। नौकरी आपके घर पे नहीं आएगी, इंफॉर्मेशन विल नॉट कम टू यू, यू हैव टू गो टू इंफॉर्मेशन। Exactly, sir. Exactly. You know, that These are is the- needed. Yeah. So now, so, very common question. So 24 is the limit, ना इसके लिए CDS के लिए जो final आप appear कर सकते हो, and for law and all it is 27 if I'm not wrong. Yeah, it is- law it is. law graduate. See, इतनी सारी एंट्रीज हैं, हो सकता है कभी कोई इंफॉर्मेशन मेरे से गलत भी निकल जाएगी, बिकॉज आई डोंट प्रिपेयर फॉर दिस एंड आई डोंट कैरी अ पेपर, इट इज ऑल स्टोर्ड अप। सो समटाइम्स आई एम जनरली नॉट ऑब्सोलीट, अप टू डेट रहता हूँ, लेकिन हो सकता है कभी बताने में कोई एक आधा ऊपर नीचे हो जाए। तो मैंने जो बताया ये 5 वेबसाइट जो है इसको फेवरेट बनाइए, इस पे अलर्ट आएगा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज घर पे आएगा, तो नथिंग लाइक इट। आपको आई गारंटी फ्रॉम हियर कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, मतलब मिलेगा क्लास 2 क्लास 1 का, अगर आप ये काम करोगे, ये 5 फेवरेट रखोगे आपके पेज के ऊपर में। Seriously.
सीरियसली. सो गाइज प्लीज जो बोल रहे हैं वो करो. ये चारों पांचों को फेवरेट बनाओ till the time you are aspiring for. So lot of information come. And I remember जब हम लोग हमारे जब when we were that young those days, so we also used to register ourselves in employment exchange. वो सबसे पहला होता था कि 10वीं 11वीं पास हुआ एम्प्लॉयमेंट कार्ड ले लो करके so you get to this thing. So that So is what now I'm saying. अपने टाइम पे we were not having much of a sources. अभी तो इतना sources है, अगर कोई seriously, चाहे, लेकिन they are getting dumped under the information, wrong information, unwarranted True, information. They true, must, true. जो करियर ओरिएंटेड होता है, जो गो गेटर होता है, जो कुछ करना चाहता है, they definitely, मुझे पता है कि अगर यहाँ पे अगर 60 है आज की तारीख में, they are genuinely interested. Correct. They are seeking the information. They came to the information. Definitely, sir. All those 59, 60 people who are watching this, because nobody spends time there. So, koi evening time, that too on a Sunday, because all of them are here to hear information, And Exactly. So now coming back, SSB में जाते हैं थोड़ा. इसके पहले मैं मेडिकल का कुछ पूछता हूँ. So there is a lot of every, flat feet and knock knees. These are the. So when I tell कि in Indian scenario, most of us may have a flat feet or this thing. So what is your take on that? कितना होना चाहिए flat feet का क्या है और knock knee का? ये कॉमन क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं. फ्लैट फीट का होता है, मेडिकल में थोड़ा कंसर्न होता है, लेकिन इतना कॉमन फ्लैट फीट होते नहीं है. आपका, आई एम सॉरी, आई वांट टू करेक्ट यू, इतने जनरली होते नहीं है. मतलब आउट ऑफ 100 90-95 आर हैविंग दैट ग्रू इन देयर फीट, दैट लिटिल बिट ग्रू इज देयर. वो थोड़ा भी है तो भी सफिशिएंट होता है. मतलब एकदम से फ्लैट जिसका होता है, मतलब आप सिंपल टेस्ट है, आप पानी में पैर भिगाइए, ठीक है, और फर्श पे जाके टिकाइए, पूरा जैसे वो पूरा पैर का निशान आ गया पूरा, जैसे लक्ष्मी के पैर होते हैं वगैरह हम लगाते हैं, या फिर पूरा पैर नजर आ रहा है. थोड़ा भी उसमें कर्व आ गया, तो दैट मींस यू डोंट हैव टू वरी. सीरियसली, तो बच गए. थोड़ा भी कर्व आ गया तो. सेम इज विद द नॉक नी. अगर आप बहुत यंग है, आप 12 मतलब 18-19 के बीच में के हैं, तो आप जैसे आप कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, यू कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर. सबसे फॉर नॉक नीज सबसे अच्छा एक्सरसाइज होता है, एक ड्रम होता है अपना, जो केरोसिन का बड़ा सा ड्रम होता है, देखिए, या फिर टार का बड़ा सा ड्रम होता है, या फिर आजकल वो जो जिम के अंदर में वो जो बड़ा सा बॉल होता है, बट वो बॉल हार्ड नहीं होता है, ड्रम हार्ड होता है. ड्रम के दोनों तरफ 2 पैर डालिए और खेलिए, रोज आधा घंटा खेलिए, झूलिए. मतलब जैसे हम घोड़े पे बैठे, ड्रम पे बैठ जाइए और झूलिए. Those who are below 18 or 19, those still growing, that is the exercise and it works. I have experience with my own students. Or there are certain medical intervention, orthopedic surgeon can suggest you some other methods. But ये जो बच्चों को लगता है कि मेरे घुटने एक दूसरे को अटक रहे हैं, वो एक्सरसाइज करिए, ड्रम पे बैठिए, एंजॉय करिए. किताब लेके बैठेंगे तो और भी अच्छा है. That's a great information. Lot of guys ask me कि कैसे करना है, तो I also tell them squats करो, ये करो. But this is coming from you because आप लोग तो day in and day out you are into advising lot of aspirants. So we were talking about LASIK, na? We were LASIK is I will be very brief henceforth, so that I can answer more questions. LASIK is not permitted for the fighter pilots in any case. But suppose you had a LASIK and then you had a 6x6, but there has to be a gap of 1 year. अभी LASIK किया आपने, यहाँ से 1 साल के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मेडिकली क्लियर हो सकते हैं यहाँ से 1 साल के बाद. Only for Army, Air Force, all 3. But in Air Force, for fighter pilots, you are not eligible. Any alteration in the eyesight, any alteration, I repeat, is not acceptable. Yeah, next. Also, for Navy and Air Force, it is specs हो सकता है क्या? For Navy और Army, Navy, Air Force तीनों के लिए specs चल सकता है. सिर्फ Navy, Air Force के अंदर जो फाइटर पायलट्स होते हैं उनके लिए नहीं चल सकता,
क्योंकि Okay. एयरफोर्स Okay. में मिथ है कि ऑल आर द पायलट्स. नो, देयर आर सर्टेन ग्राउंड ड्यूटीज आल्सो. ग्राउंड ड्यूटीज आर देयर. Correct. So Correct. 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 there Correct. you can join. Correct. And your corrected eyesight should be 6/6, na? You know, Yeah, whatever corrected. you do. With spec, with LASIK, लेजर से किया है तो 1 साल का गैप होना चाहिए. और आप जो लेजर से अपना चश्मा निकालना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप 20 साल के बाद ही वो करें. आप Okay. आज 20 के हैं उसके बाद करें, क्योंकि आप यू आर स्टिल ग्रोइंग अप टू 20. सो लेसिक करने के बाद में फिर से अगर आपका आई बॉल, अगर आपके सॉकेट में थोड़ा सा चेंजेस आ गया तो अगेन इट माइट हैम्पर योर आई साइट. Okay. Okay. Yeah. Okay. Also, with respect to dentistry, ये denture या root जो करते हैं ना, additional artificial teeth लगाते हैं, is that permitted? वो 32 points छोड़ के अगर कोई निकले. with certain मीन्स अगर रूटिंग है, रूट किया है, रूट के ऊपर में कैप है तो दैट इज ओके, दैट इज एक्सेप्टेबल. एंड बट अभी किसी का ब्रोकन टूथ है, सामने से ही ब्रोक है, और वो परमानेंटली अगर इट डिपेंड्स अपॉन एंट्री टू एंट्री आल्सो. इफ यू आर Okay. गोइंग फॉर द इफ यू आर थ्रू सीडीएस, यू आर गोइंग थ्रू इंजीनियरिंग, तो थोड़ा सा उसमें से एक्सेप्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है. लेकिन इफ यू आर लॉस्ट योर 2-3 teeth और 2-3 teeth एट द एज ऑफ 17.5 फॉर इंडी एंट्री, तो बाय दैट टाइम यू विल ग्रो अप, तो और ज्यादा डैमेजेस होने के चांसेस हो जाते हैं. इट डिपेंड्स. You can take a chance. True. Means boy can take a chance with that. Okay. So eyesight Navy का बोले थे ना, we just spoke about it. So you can go on the website and check this because we want to talk on SSB. So how to approach SSB interview, sir? I mean, in short, maybe this would be the last topic, and something about territorial army after that. So how to Sir, what is approach SSB? I will brief in 5 minutes. Why SSB? Because you are working on a tasking scenarios, means unfavorable scenarios. और सबसे इम्पोर्टेंट यह चीज होता है कि उसके अंदर में जब आप मान लो आप बैंक मैनेजर है और आपके अंडर में कोई कैशियर है और 31 मार्च आ रहा है, अभी पैसे का हिसाब नहीं लग रहा है, तो मैनेजर ज्यादा से ज्यादा उसका पसीना निकाल सकता है तो भाई तू बैठा रहे यहाँ पे, हिसाब लगा के दे दे, तभी तेरे को मैं घर जाने दूंगा. ये नहीं बोल सकता कि इतना काम कर कि तू कहीं शहीद ही हो जाए. बोला मैनेजर साहब आप जरा अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, तुम्हारे बैंक के लिए मैं थोड़ी शहीद होने वाला हूँ. लेकिन वही अगर मैनेजर ऑफिसर बन जाता है और वही कैशियर अगर सोल्जर बन जाता है तो वो उसके वर्ड्स के लिए वो रेडी टू डाई हो जाता है. मतलब ही इज रेडी टू डाई फॉर हिज ऑर्डर्स. तो ये चमत्कार कैसे हो आपके, तो आप अफसर है तो व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट अ सुप्रीम सैक्रिफाइस. व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग यू कैन आस्क. जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोलना था कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो तब उनको यूनिफॉर्म पहनना पड़ा. बराबर. सो उनको भी यूनिफॉर्म पहनने के बाद दैट हैज कम, एंड यू हैव टू लीड एग्जांपल. यू आर लीड फ्रॉम द फ्रंट. यू हैव टू यू कैन नॉट से कि ओके आप आगे बढ़ो मैं अपना कर लूंगा. नो, मैं आता हूं. तो एसएसबी क्या करता है? एसएसबी चेक करता है कि दिस फेलो हैज दैट गट्स. ही चेक्स द कैरेक्टर. That SSB checks the character of the individual. He checks the courage, commitment, then group influencing ability, decision making ability, discipline. They check 15 different qualities which cannot be developed overnight. आप courageous है, आप टीम प्लेयर है, आप अच्छे सबऑर्डिनेट है, यू आर अ गुड, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज अच्छा है. ये कैसे होगा? तो आपको अगर आप छोटे हैं, बच्चे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, सबसे पहला काम आप ये करिए, यू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर. Exactly. In making the decision, you start reading at least one book in a month. Read the autobiographies of a successful people. आप सबके मोबाइल के अंदर में ऑल इंडिया रेडियो का एक ऐप होना चाहिए.
इसलिए कि रोज सवेरे 8 बजे से लेके 9 बजे तक, आज के तारीख में कोरोना होने की वजह से, अदरवाइज 8 से लेके 8:15 बजे तक हिंदी में समाचार आते हैं, समाचार प्रभात में। और 8:15 से 8:30 तक 15 मिनट के लिए अंग्रेजी में समाचार आता है। उससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। करेक्ट। इन इंग्लिश आपका ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश सुधर जाएगा। और आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तभी तो सामने वाला शहादत देने के लिए तैयार हो जाएगा आपके कहने के ऊपर। एग्जैक्टली तो पहले न्यूज़पेपर, दूसरा ये आपका न्यूज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, वो 1 घंटा न्यूज़पेपर के साथ में आधा घंटा, और आधा घंटा रीडिंग एनी बुक। यू रीड ऑन अ किंडल, यू रीड एनीवेयर यू वांट टू रीड, बट रीड। एंड आधा घंटा टू हैव अ फिजिकल कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज, मींस एक्सरसाइज। करेक्ट। Better communication, better information to share makes you better decision maker. Correct. Exactly. Who can take? I will give an example to everybody. Who takes now? आज के तारीख में अस्पताल का बड़ा चर्चा है, तो who takes the decision in the hospital? Doctor or a nurse? Doctor. Why? Because he has a pool of information. There are stages. There are stages. Information converts into a knowledge converts into the decision. What is the difference between information and knowledge? Is information, you know which information to be used when and where, is a knowledge. And applying it is the decision making. डॉक्टर ने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी 5 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन में, स्पेशलाइजेशन में और 2 साल, 7 साल, वो थोड़ा सा उसमें पता चल गया कि कौन सी गोली कहाँ देना है, कौन सा पल्स बढ़ता है, किस हालात में क्या कब होता है। तो ही इज अ डिसीजन मेकर। सब उसको पूछते हैं। घर में अगर आपका बड़ा भाई अगर कंप्यूटर इंजीनियर है तो घर में लैपटॉप खरीदने के लिए उसके पास ही जाएंगे, आपके फादर के पास जाएंगे, क्योंकि वो तो बेचारा टीचर है। तो आप उस हालात में हु इज द लीडर, दैट इज कॉल्ड सिचुएशन लीडर्स। करेक्ट। वो सिचुएशन में वो लीडर है। तो आपको अगर लीडर बनना है तो आपके पास में पूल ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आपको अगर लीडर बनना है तो यू हैव टू हैव अ लीडर, डजंट मीन व्हाइट क्लॉथ्स एंड व्हाइट टोपी, नो। लीडर मींस डिफेंस लीडर और द ऑफिसर, व्हाटएवर। तो आपके पास में पूल ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? द न्यूज़पेपर, द रेडियो, द बुक्स, द टीचर्स, द पीपल लाइक अस। वी आल्सो टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम समबडी। So make a pool of your CPU should be filled with the data. Then only your speaker will be able to give some information. If I don't have a data in my CPU, here is my CPU. There will be no information from my mouth. My speaker will just murmur. Seriously. So that is what the SSB have to prepare. The SSB is not a rocket science. आपने दिया, मैंने भी दिया है, हमने तो कोई अलग कोई चीज करी नहीं। सही बात है। Yeah. And then so once you reach SSB, so a quick this thing, what are the types generally they ask, what are the type of questions they prefer asking? There are 3 people in SSB. One is psychologist, another one is a GTO, that is group task officer, and third one is a interviewing officer. साइकोलॉजिस्ट आपको पेपर के ऊपर में चेक करता है। मान लो आपके सामने वर्ड दिखेगा 5 सेकंड के लिए मदर, एंड यू हैव टू राइट डाउन अ सेंटेंस विद इन 15 सेकंड्स, एंड ऐसे करते 60 वर्ड्स आते हैं एक के पीछे। तो आपका बैलेंस खो देते हो, आपका ग्रिड ही खत्म हो जाता है। यू स्टार्ट लूजिंग द कंट्रोल ओवर योर थॉट प्रोसेस। इसलिए 60 वर्ड्स होते हैं। तो मान लो मदर है, तो somebody will write कि my mother's name is Rani. He will make a sentence like that. Somebody will write down कि necessity is the mother of invention. Somebody will write down mother is the first teacher. So आप क्या लिखते हो वो 10 सेकंड में आपके दिमाग में क्या आता है और आप क्या नोट डाउन करते हो, ये साइकोलॉजिस्ट चेक करता है वहां पे। जीटीओ आपको ग्राउंड पे भेज देता है, 10 बच्चों के बीच में भेज देता है कि भाई करते रहे, तू ये एक्टिविटी करके दिखा। ग्रुप डिस्कशन, देयर इज अ ग्रुप डिस्कशन, देयर इज अ लेक्चरेट। आपको 3 मिनट दिया जाएगा, एक टॉपिक आपने बाउल में से निकालना है, उसमें से 2-3 टॉपिक होंगे, उसमें से एक चूज करना है। उसमें 3 मिनट आपको सोचने के लिए मिलेगा, 3 मिनट डिलीवरी के लिए मिलेगा। सो आप 3 मिनट में, अगेन वही बात आ जाएगी कि सीपीयू में कुछ नहीं है तो 3 मिनट दो,
3 घंटे दो या 3 दिन दो, तो Correct. सीपीयू में इकट्ठा करना शुरू करो. इट इज कॉल्ड एज अ रिकॉल, प्रोसेस एंड डिलीवर once you have the Okay. data. Correct. So that is what he will do, and interviewing officer will talk to you for 1 hour, 45 minutes to 1 hour. He will talk to you. अभी 45 मिनट बात करना मतलब ये ऐसे आसान काम नहीं है. तो वैसे तो चैटिंग तो बहुत कर लेंगे, लेकिन कॉन्क्रीट कुछ बात करनी है कि सपोज ही विल आस्क यू, ओके व्हाट डू यू थिंक देयर विल बी वॉर बिटवीन चाइना एंड इंडिया, वेदर चाइना विल how you will tackle the situation, or how you will, suppose you are the collector of the district, and how you will handle the corona in your area, or who is your role model and why. Uske to why, when you must ask this 5 W's and 1 H. Why, Correct. when, where, what, and how. Apply this to any information, you will get all the answers. And that is how you can develop for SSB. SSB you cannot prepare overnight. That is why at our end we are having an engineering college also. I run one association with one of the engineering college here. I am in agreement with them. I prepare those boys right from the first year. Exactly. लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में वी आर प्रिपेयरिंग देम थ्रू आउट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर. यू कैन नॉट डेवलप अ कैरेक्टर विद इन द 4 wall of the classroom. True. So that is what SSB. Somebody has asked for the territorial army. So territorial army तो भाई साहब ऐसा है कि आपको मतलब आपने एनडीए खो दिया, आपने ग्रेजुएशन में कुछ कर नहीं पाए, आपको फिर भी आप कहीं चले गए, अभी आप कहीं इंजीनियर का काम कर रहे हैं किसी फोक्सवैगन में या फिर टाटा में या फिर एलएनटी में या फिर इधर उधर XYZ प्लेसेस पे, और आपको मूड बन गया कि मेरे को भी फौज में काम करना है. तो ऐसे बंदों को मौका दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेरिटोरियल आर्मी के नाम से. इसमें एक बात है कि अप टू 42 years ऑफ एज यू आर एलिजिबल. करेक्ट. तो आप फिर से वही एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ऐड आएगी टेरिटोरियल आर्मी की जो मैंने बताया था, और उसके ऊपर में आप अप्लाई करिए. आपको टेरिटोरियल आर्मी एम्बॉडीमेंट होता है आजकल, पूरा 12 महीने का एम्बॉडीमेंट होता है. आप जाना चाहते पूरे कंटिन्यू करना चाहते कर सकते हैं, या फिर आपको साल में 3 महीने 6 महीने आप अपने डॉक्टर है, मैंने तो ऐसे भी देखे, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, प्रोफेसर है, ही वांट टू जॉइन द फौज में उसको काम करना है थोड़ा सा, तो भाई साहब आ जाते हैं 4 महीने एम्बॉडीमेंट में काम करते हैं, वापस चले जाते हैं अपने लेक्चरिंग करना शुरू कर देते. तो दैट इज व्हाट द टेरिटोरियल आर्मी. Ladies can also join territorial army? No, as of now there is no chance for the ladies to join the territorial. Join this thing. So yeah, so I'm sure a lot of things are going to change. Like as we discussed, 12K baad bhi ladies entry, permanent commission is already there. A lot of things are going to change. Yes. So last discussion is if you can tell about your college, Armed Forces Preparatory Institute. A lot of boys are asking. After doing SPI as a director of, I'm in this profession for last 12 years now. So 12 to 13 years. So I started a college, a residential college for 11th and 12th science, CBSC. So I'm having 80 students this year, and for 11th I'm giving admission for 120 students, all residential. I was very meticulous daily routine, the way we have it in army. It is like a small army for me. I ran my own institute on that philosophy, right from reveal to retreat. सबेरे उठेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, फिर I conduct their session. We call it as assembly, where we all sit together and listen the radio news, including me, every day. And then we analyze all the news in that, means what is internationally has happened, nationally happened, what happened in sports, what happened in business world. Economically क्या हो रहा है, we discuss it from 7:30 to 8:30. We does that initially, but now 8 to 9. Then they have a breakfast and they have a classes up to 3:30. Then they go for in between there is a lunch. Then there is a evening games, and then they go for the self study. The lights are off by 11. Sorry to say, but all Instagram lovers, no cell phone will be allowed in that 11th and 12th. So you have from see कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही. सही बात है. तो अगर आपको जब बड़ा सोचना होता है
तो रास्ते के छोटे छोटे पत्थर की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। ये छोटा सा पत्थर होता है ये, जो आपको आपको ठेस लगा के आपको गिरा भी सकता है, तो आप यू कैन ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम दैट। तो दैट इज व्हाट द AFPI is for 11th and 12th. We call it as the NDA wing, and there is an engineering wing also where I permit the cell phone, but only for 2 hours in a day. That is from Okay. 8:30 to 10:30 in the evening. Again, they Okay. have to deposit on at 10:30, and they have to live a routine life because they require to do the jobs and the assignments and all that. And they are grown up also. But 2 hours cell phone is sufficient enough to catch up with everybody, isn't it? You can't be glued to the screen all the time कि किसका कोई मैसेज आएगा, कोई व्हाट्सएप डाल रहा है, कोई इंस्टा का कोई मैसेज है क्या. So I don't give that phone to the boys throughout the day. For engineering wing, only 2 hours I give that. There also we prepare for INET, AFCAT, then this CDSC and all that. So that is what the organization is, and complete residential organization, no day borders, and having a proper meal, proper physical activity, proper exposure to the other. We take them to the NDA, we take them to the INS Hansa. You must be aware about that museum. Yeah. The boys there. We go for the cross country. You will love to hear that. All the boys can run 7 kilometers within 30 minutes. All Wow. 7. That is awesome. 7 kilometers in 30 minutes is awesome, Yes. you know. Because they are doing other things also, no? They are not the Correct. professional marathon runners. They are the students. They have to prepare also. We have the competition also, inter-company competitions, cross-country competition. The way we does it in the Forge. We have we have a volleyball, basketball, football, cross-country, and all these things are there. So that is what my organization is all about. And then, do you have girls entry also? Someone is asking. As of now, I'm really sorry. I really want to start it, but within a year or two, I will definitely go for that. The moment NDA Yeah. opens up, but girls are allowed in the engineering college, engineering wing. Okay. Okay. There are Okay. girls, but not for the 11th and 12th. For engineering, there are girls. Those who want to join any engineering college, they can come and take the help of our college. Okay. So great, sir. So it has been a very informative session, because I'm sure a lot of aspirants and lot of people who are there on Instagram who are aspiring doesn't know, because this is coming from someone who's into it day in and day out. बहुत लोगों को ये भी नहीं पता था कि employment news is the source for thing, you know. They just believe on WhatsApp forwards and things like that. So sir's institute name is AFPI, Armed Forces Preparatory Institute. You can Google it, and you can follow him on Instagram. But though he's not much on Instagram, as he said, कि phone allow नहीं करते तो खुद भी. Same name is there on the Facebook also. They can send a friend request for the Facebook, and I will be active on Instagram henceforth, Vijay. Thanks to you. Yes, sir. Because lot of youngsters are here, lot of you know. So I think you should be active and guiding people here. Yes. Why not? Because What are the queries? Suppose I am not able to answer the queries right now on this forum or this live chat. I'll request all the guys to send me the what is it is called a friend request in Insta also. yes, you got a direct message. So guys, you can direct message to Major Chandra Sen on his DM, and I'm sure he's one person, because we know each other from very long. So he will definitely revert to you in spite of his busy schedule. And whenever you happen to be there in his town, please visit his college. And probably this is one of the most informative session I had with anyone, you know, like this thing. So guys, here is a Kargil war veteran, and you know, when both of us speak, both of us share that, both of us were part of that, and then we are proud of ourselves being there and, you know, serving on the front line to the armed forces for which we were. So thank you so much, sir, and definitely thanks for giving me this opportunity to interact with such a young crowd and a completely new group, and I'll definitely answer their queries, and thank you very much for the session, Vijay. So Jai Hind, sir, and yes, so guys, I would be there for 10 more minutes. So sir is about to leave, so I can sum up after this. So thank you, sir. Thank you, Vijay. Jai Hind.